solid we were talking about spherical coordinates. Spherical coordinates. So in spherical coordinates, what we have? We have one distance and two angles. This is the spherical coordinate representation. When the point you want to represent in a space, you can use this notation. So here, this is x, y, x, y, z. So from this, if you have a point, this rho, theta, phi, if this is point P, so rho is the distance from the origin, phi is the angle from the positive z axis, this is angle phi, and theta is the angle from the positive x-axis. Theta is your angle, this from positive x-axis. This is the angle theta, which is your polar angle. Okay, so this is the point which you can represent, and here you can join it, this and this. These are perpendiculars. So in this way I can represent the point. And phi पे restriction होती है कि phi is lying from 0 to pi. Phi can take 0 to pi. Theta can take 0 to 2 pi. Okay. And the relation we found also. The relation was what? R is equal to rho sine phi. You can find it. This is rho. This distance is R on xy plane, radial distance. So, and this is your z axis. So if it is a right angle triangle, you can see if it is phi, it is how much? Pi by 2 minus phi. So by doing some trigonometry, you can find R is equal to rho sine phi. So x is equal to कितना होता है? R cos theta. So R cos theta means rho sine phi cos theta, and z is equal to how much? You can find z upon rho is कितना है? Perpendicular upon hypotenuse, है ना? Sine pi by 2 minus pi cos phi. So z is equal to rho cos phi, and because y is equal to r sine theta, so you can write it is equal to r sine phi sine theta, and rho is a distance from origin, so rho will be x square plus y square plus z square in Cartesian, and you can put the value of this, so it will be r square plus z square. Okay, and here also if you are keeping one thing is fixed, rest two things as a free variable, it will give you different shapes. Like if rho is equal to a, I am fixing rho is equal to a. Distance is fixed. It means what? Theta and phi can move. So phi can move like this, 0 to pi. Theta can move 0 to pi. So what it will represent? Rho is equal to a. This is fixed. Theta and phi is varying. क्या बनेगा? बताइए. cos phi. शेप क्या बनेगा? आई एम आस्किंग. आपका स्फीयर बनेगा. रो फिक्स कर दिया मैंने. स्फीयर बनेगा. स्फीयर बनेगा ना, क्योंकि ये दिस लाइन कैन मूव लाइक दिस, ऐसे सेमी सर्किल, और यू कैन रोटेट इट 0 to 2 pi. क्या बना? स्फीयर. स्फीयर ऑफ रेडियस ए, है ना, एंड सेंटर एट origin. ठीक है. Now if I am fixing second phi, if phi is fixed, suppose phi is equal to phi naught, that means phi fixed means theta and rho are free variable now. So phi I have fixed. I am fixing phi. So suppose ये angle fix है आपका, it is some fix now. Phi naught. This distance can change and this angle can go 0 to 2 pi. क्या होगा बताइए? इसे ये एंगल तो फिक्स है, लेकिन यू कैन रोटेट इट लाइक दिस. इसे रोटेट कर सकते हैं ऐसे. क्या दिख रहा है? कोन बनेगा, है ना.
क्योंकि this distance is can be anything but it is a cone. So phi is equal to phi naught describes a cone whose vertex is origin. Vertex at origin O, and the z-axis is the x-axis. Z-axis is the axis of the cone. Axis क्या होता है? इसके around revolve होता है. So axis of the cone is z-axis. Theta is equal to theta naught fix. Now I am fixing theta naught. So rho and phi are free variable. So now theta naught is fixed. Look at here now again. So theta naught means suppose here this angle is fixed now. Theta naught is fixed. This distance rho can change and this can be 0 to pi. ये एंगल कुछ भी हो सकता है. तो क्या बनेगा ये इस तरीके से? बताइए. थीटा नॉट फिक्स है लेकिन क्या है ये? हाफ प्लेन. हाफ प्लेन है ना. प्लेन आ रहा है ना. थीटा नॉट फिक्स है. यू आर हेयर. तो क्या हो रहा है ये इस तरीके से? एक प्लेन का प्लेन आ रहा है ना. ये यस सर प्लेन. इस पे थीटा नॉट फिक्स कर दिया हमने. रो भी चेंज हो सकता है, पाई भी. So it's a half plane. Half plane means in this side, z axis, positive z axis. Half plane that contains the z axis. That contains the z. So in spherical coordinates, rho is equal to a represents sphere, phi is equal to phi naught represents a cone, and theta is equal to theta naught represents a plane. ठीक है. One problem is there. Find the spherical coordinates. Find the spherical coordinate equation of the sphere x square plus y square plus z minus 1 whole square is equal to. इसके में spherical coordinate equation निकालनी है. तो I will have to put the spherical value. तो हमने एक relation निकाला था spherical में. देखो x is rho sin phi cos theta, y is rho sin phi sin theta. So putting this value, we got x is equal to rho sin phi cos theta, y is equal to rho sin phi sin theta, and z is equal to rho cos phi. So putting these values, so you got rho square sin square theta, rho square z minus 1. So rho cos phi minus 1 whole square is equal to. Okay, जरा solve कर लीजिए. देखिए, you can take this common. तो cos square theta plus sin square theta is 1. So it is rho square sin square phi. Open this square. Rho square cos square phi plus 1 minus 2 rho cos phi is equal to 1. Okay, 1 से 1 cancel. रो ये कितना बन गया? रो स्क्वायर है ना. sin square phi cos phi 1. रो स्क्वायर minus 2 रो cos phi is equal to 0. This implies that रो कॉमन ले लें. रो minus 2 cos phi is equal to 0. तो रो इज इक्वल टू 0 आई कैन नॉट टेक, क्योंकि रो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होता है. यहाँ पे रो पे रेस्ट्रिक्शन होती है. रो इज ग्रेटर देन 0. रो अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो ये आपके पास एक पॉइंट ही बन के रह जाएगा ना. रो ग्रेटर देन 0. सो रो कैन नॉट बी 0. सो रो इज इक्वल टू 2 cos phi. ठीक. so this is the equation of the sphere. ये आ गया. अब आप फाई की वैल्यू चेंज करेंगे तो इट विल गिव यू स्फीयर, डिफरेंट स्फीयर. यहाँ पर क्या है देखिए, आपके पास रो फिक्स हो गया ना. फाई भी आपके पास फ्री वेरिएबल है. फाई को मैं कुछ भी ले सकता हूँ और थीटा इज फ्री वेरिएबल. तो इट इज लाइक फर्स्ट इक्वेशन स्फीयर.
Example 4. Find a spherical coordinate equation for the cone. Find a spherical coordinate equation for the cone. देखो ये कोन की इक्वेशन है z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर कोड नहीं लिखा होता तो आपको आइडिया नहीं लगता इजीली क्या है ये. अब जेड स्क्वायर करके लिखेंगे तो आप पूछेंगे कि हाइपरबोला लग रहा है क्योंकि माइनस का टर्म आ जाएगा. बट आई एम टेकिंग जेड इज इक्वल टू पॉजिटिव साइड, तो राइट हैंड साइड जेड इज ऑलवेज पॉजिटिव. एक्स वाई यू कैन टेक एनी वैल्यू, है ना. तो दिस रिप्रेजेंट्स अ कोन. देखिए अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो आपको मालूम है कि इफ यू आर गेटिंग फाई इज इक्वल टू फाई नॉट समथिंग, तो ये कोन होता है. देखते हैं क्या आ रहा है. तो पुटिंग द वैल्यू z इज हाउ मच, रो cos फाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना. ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. कितना आया था ये? रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा सॉल्व होके, क्योंकि ये एंगल आपका 1 बन जाएगा, है ना. So you got this. अब ये अंडर रूट आई कैन ओपन अंडर रूट. So row of sin phi, because both are positive. So this implies that sin phi upon cos phi is tan phi is equal to 1. So phi is how much? Pi by 4. है ना? So phi is fixed. So what it represents? It represents a cone where phi is pi by 4. This angle is pi by 4. This is that. Partition में it is this, and spherical में it is pi by 4. Okay. Now finding triple integral using spherical coordinates. Triple integral कैसे solve कर सकते हैं? तो here I can take the Riemannian sum of the wedge shape. You have a spherical shape like, और मेरे पास ट्रिपल इंटीग्रल में निकालना है तो मैंने कुछ इस टाइप का शेप लिया. देखिए स्फेरिकल शेप, और यहाँ पर हमें फॉर्मूला निकालना है ट्रिपल इंटीग्रल का. सपोज यू हैव एक्स वाई, तो ये कुछ स्फेरिकल शेप है. यहाँ पर क्या करूँगा मैं, एक वेज शेप फिगर दूंगा और उसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकाल देंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे ना. सपोज ये आपका एक वेज शेप फिगर है. ये क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ सम बॉडी विच इज स्फेरिकल. जैसे आपसे मैंने बताया था वाटरमेलन को कंसीडर कर सकते हैं आप, कि वाटरमेलन का अगर आपको पूरा वॉल्यूम निकालना है सपोज करिए, तो जो एक पीस होता है, जस्ट टेक अ पीस ऑफ वाटरमेलन दैट इज वेज शेप, उस पीस का अगर हम वॉल्यूम निकाल दें और उसे इंटीग्रेट कर दें, ट्रिपल इंटीग्रल है ना, दैट विल गिव यू द होल वॉल्यूम. तो इस वेज शेप का हमें क्या निकालना होगा? डायमेंशंस. व्हाट इज द डायमेंशंस? तो यहाँ पे 3 डायमेंशंस यहाँ पे देख सकते हैं. 3 डायमेंशन में इट हैज लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ, है ना. ये कुछ इस तरीके से आ रहा है कि यू हैव लाइक दिस, ऐसे आ रहा होगा. अब इसमें जो आपके पास शेप से कैसे बनेगा, देखिए ये जो चीज है, नाउ यू हैव 3 कोऑर्डिनेट्स. तो ये जो आपके पास बन रही है लेंथ, दिस, ये जो लेंथ है ये तो आपका थीटा के फॉर्म में आएगी, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये रो होगा. तो हमने एक शेप कंसीडर कर लिया कि सपोज इसकी लेंथ तो डेल्टा रो है. ये क्या है? ये रो है ना, इस तरीके इधर इंक्रीज कर रहा है रो की साइन. तो सपोज ये डेल्टा रो है, ये डिस्टेंस आपको और ये डिस्टेंस निकाल दी होगी. तो बाई डूइंग ज्योमेट्री, यहाँ पर एंगल, अच्छा एंगल कितना है? दिस एंगल इज हाउ मच? दिस एंगल इज फाई. ये फाई एंगल बन रहा है, और ये डेल्टा थीटा हमने मान दिया, स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा. व्हाट आई हैव कंसीडर्ड? I am considering some kth wedge. This whole body को divided into some n wedges, and suppose the coordinate of this rho के, theta के, rho के, phi के, and theta के. It is the point, arbitrary point on this.
So I have considered this small wedge, kth wedge, whose dimensions are given by. So what it has three, why it has spherical wedge है ये ना. It has one edge a circular arc. एक तो circular arc है इस तरीके से है ना, ये circular arc है. It is one edge. Another edge is another circular arc. Another edge कौन सा है ये. It is also circular. And third edge is this distance. This will be coming. इसे आप सॉल्व करेंगे, ये बुक उसमें दे रहा है, बुक में अगर आप देखेंगे, मैं देखता हूँ बुक पढ़ेगी उसमें, तो इसकी जो लेंथ आएंगी यहाँ, book is visible. Yes, sir. So here you can see this figure is, this is the figure of this. ये figure है देखिए. This is the sub body. I want to find the volume. So what I have done. This pink color wedge I am taking. This small. जैसे rectangular region में करते थे, ये small rectangle ले लिया, उसका volume integrate कर दिया. तो यहाँ पर you have three edges. One edge this, whose length is delta rho. Second this circular edge चाहिए, है ना, arc, circular arc है, इसकी length आएगी rho sin phi del theta, because this angle is delta theta. And third जो है this, it is also circular. Its length is coming, it's coming how much? Rho delta phi. ये जो है, ये तीन sides इसके आएंगी, है ना. You can see it. They are doing some geometry. Then these three sides will be coming. ठीक है, यहाँ पे दिया है. तो ये इसका अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम मीन्स मल्टीप्लाइंग ऑल दीज थ्री साइड्स. So the edges will be coming delta rho के and rho के delta phi के. This is second edge, ये वाली, and this third one, this is coming rho के sin phi के and delta theta की. ये आएगी आपकी थर्ड एज. तो when you will take the volume, so volume of this delta v के, volume of this small wedge, it will be what? Product of all these three sides. तो कितने देखो, रो के twice आ रहा है इसमें, तो you will be having रो के square and sin phi के, and बाकी क्या आ रहा, डेल्टा रो के, डेल्टा फाई के, डेल्टा रो के, डेल्टा फाई के, डेल्टा थीटा के. ठीक है, ये वॉल्यूम आपके पास आएगा अब स्मॉल वेज का. नाउ इफ यू विल टेक द रिमान सम, सो Sn विल बी व्हाट? समेशन k इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ रो के, फाई के, थीटा के. रिमान सम क्या होता है? फंक्शन की इंटू कर देते हैं वॉल्यूम में. ये वॉल्यूम है रो के स्क्वायर साइन पाई के इंटू डेल्टा रो के, डेल्टा पाई के, डेल्टा टी के. ओके, so this is the volume. So now if I will integrate it and I will take limit n tending to infinity, it will become triple integral. So if I am taking limit n tending to infinity Sn, I am taking number of small wedges I am increasing. So this will give you triple integral d is the region f of rho phi theta rho square sin phi. ये टर्म एक्स्ट्रा आएंगे यहाँ पे, रो स्क्वायर साइन फाई डी रो डी फाई डी थीटा. ठीक है, जैसे इसमें पोलर पे जब हम सेंटिकल में कर रहे थे तो आर डी आर वहां पर आ रहा था, पोलर में आता था आर डी आर डी थीटा.
यहाँ पे दिस टर्म एक्स्ट्रा इज कमिंग डाउन. Okay, so if you want to find volume, so I will put it 1. It will give you the volume of the body in spherical coordinates. For volume, you can put and integrate. Now the next thing is how to take the limits of these three coordinates, d rho, d phi, d theta. इनकी लिमिट्स कैसे ली जाए? तो लिमिट का कंसेप्ट सेम जैसे हमने पीछे एक्सप्लेन किया था. फर्स्टली आई विल टेक द लिमिट ऑफ रो, फिर डी फाई, फिर फाई एंड देन थीटा. तो फर्स्ट स्टेप इज स्केच फाइंडिंग लिमिट्स. फाइंडिंग लिमिट्स फर्स्ट स्टेप तो सेम है, आपको स्केच करना होगा जो भी फिगर दिया होगा. तो सपोज कि योर स्केच इज कमिंग, कुछ इस टाइप का स्केच आ रहा है. सपोज ये स्फेरिकल शेप है, सो आई एम टेकिंग लाइक दिस. It is your z axis. Suppose this is a body. ये क्या है? ये दिस इज योर z axis. z axis से कुछ एंगल पर, यहाँ कुछ एंगल है इसका, ये एक बॉडी है, ये है ना. और नीचे यू हैव x एंड y एक्सिस. तो फर्स्ट थिंग इज कि आपने स्केच कर लिया, ये d है. सेकेंड इज टेक द, इसका प्रोजेक्शन भी आप ले, टेक द प्रोजेक्शन, स्केच करें एंड टेक द प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन, क्योंकि प्रोजेक्शन से ही हम रे लेंगे. टेक द प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन. एक्स वाई प्लेन में जब आपका इसका प्रोजेक्शन लेंगे, इट विल बी लाइक दिस. प्रोजेक्शन अगर मैं इसका बनाऊं किस, कुछ इस टाइप का आएगा. देखिए ठीक है. इट इज द प्रोजेक्शन. नाउ आई विल टेक द रो लिमिट. सेकेंड थिंग इज फाइंडिंग रो लिमिट. रो लिमिट्स. तो रो लिमिट्स के लिए व्हाट यू विल डू, यू विल टेक अ रे फ्रॉम द ओरिजिन, क्योंकि रो डिस्टेंस कहाँ से मेजर होती है? ओरिजिन से. यू विल टेक अ रे फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग डायरेक्शन इन द थ्रू डी. तो दिस इज द रे. ये एक रे लिया आपने, सपोज एम है, ठीक. टेक अ रे इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन. तो इंक्रीज, रो इंक्रीज कब होगा? व्हेन यू आर गोइंग अवे फ्रॉम ओ, और ओ से स्टार्ट होता है हमेशा. So here this enters, where this enters, this is the your lower limit. तो ये रो की लोअर लिमिट क्या होगी in terms of phi theta, है ना. And where it leaves, that is the upper limit in terms of phi theta. Okay, कैसे लेनी रो की लिमिट भाई? Take a ray from O in the increasing direction. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Next I will find, third is phi limits. Phi limits. देखो phi क्या? phi is the angle. Phi is the angle making with the z axis. तो z axis से कितना एंगल बनेगा ये हमें देखना है, कि मिनिमम एंगल कितना, मैक्सिमम कितना. वही phi की लोअर अपर लिमिट होगी. तो अगर ये आपके पास एक बॉडी है, देखिए, तो phi से जो मिनिमम एंगल होगा, मिनिमम, तो अगर ये, तो phi आपका किस डायरेक्शन में चल रहा है? लाइक दिस. तो जब phi से आप स्टार्ट करेंगे, तो ये जो रे आपकी m है ना, ये m जब बिल्कुल व्हेन इट विल बी लाइक हेयर, इस पर होगा, तो ये तो मिनिमम एंगल होगा, phi मिनिमम. ओके. एंड मैक्सिमम कितनी होगी रे? व्हेन इट विल बी लीविंग दिस. इस रे को अगर आप मैक्स कहाँ लीव कर रहे होगी? यहाँ. तो ये जो एंगल बन रहा होगा आपके पास, दिस,
है ना, दिस विल बी फाई मैक्सिमम एंगल। बात समझ में आ रही है? यू हैव अ बॉडी फ्रॉम z एक्सिस, तो व्हेन यू विल टेक द एंगल, तो क्या हुआ, व्हेन यू विल स्टार्ट विद z एक्सिस थ्रू एंगुलर डिस्टेंस, तो जहां z एक्सिस से चले तो जहां फर्स्ट इसे टच करेगा वो आपके फाई की मिनिमम एंगल हो गया, तो जहां लीव करेगा वो दैट विल बी फाई मैक्सिमम एंगल। ओके, बताइए। फॉर दिस थीटा लिमिट, थीटा लिमिट से आपकी ऑन द प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन जो लिया आपने यहाँ पर, यू विल टेक अ रे फ्रॉम ओरिजिन, सपोज इट इज एम था वो, इट इज एल, इट इज पासिंग थ्रू दिस। अब ये एंगल थीटा बनाएगा आपका, है ना, तो थीटा एंगल कितना होगा, तो यू विल सी कि ये थीटा एंगल जो आपका बना रहा है, जो रीजन प्रोजेक्शन है, सो दिस विल बी थीटा इज इक्वल टू अल्फा मिनिमम एंड this will be theta is equal to beta, means जो whatever your projection, तो projection में this ray is completing how much angle, क्योंकि ये एंगल कितना है आपका in the xy plane, so this is the lower angle, lower limit, this is the upper limit. Okay, in this way you can find the theta limits. So this is the way you will find the limits of spherical coordinates. एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, एग्जाम्पल 5। Find the volume of the आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम कोन एक है, अभी देखिए शेप बनाऊंगा वो आइसक्रीम कोन जैसा है, जैसे सॉफ्टी होती है, सॉफ्टी देखी थी पहले आती है, जो सॉफ्टी का जो शेप होता है कोन जैसा होता है, आइसक्रीम कोन डी कट फ्रॉम द सॉलिड स्फीयर रो लेस देन इक्वल टू 1, इट इज स्फीयर, यू नो, रो इज फिक्स, लेस देन इक्वल टू का मतलब सॉलिड स्फीयर हो गया, एंड बाय द कोन फाई इज इक्वल टू पाई बाई 3। देखिए दिस विल एक्सप्लेन द लिमिट्स एंड फर्स्ट थिंग इज स्केच। तो देखो आपको एक कोन बनाना है और एक स्फीयर, एंड यू विल हैव टू टेक द इंटरसेक्शन, तो हाउ यू विल टेक, you have this is your z axis, you are taking a cone phi is equal to pi by 3, means 60 degree, it is a cone, है ना, and ये cone cut from the solid sphere, आप एक sphere है rho less than 1, rho is equal to 1 is what, it's a sphere of radius 1 center 0 0, है ना, तो एक sphere बनेगा, तो जब आप इसे कट करेंगे तो what you will be getting like this, ये एक स्फीयर है, लेकिन जब आप इसे कट करेंगे तो ऊपर का हिस्सा जो आ रहा है आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, कट होकर, है ना, ये ओके, ये लाइक अ सॉफ्टी, सॉफ्टी में जो आपके ऊपर स्कूप रखा होता है, ये, तो इट इज अ फिगर, सॉलिड है, तो ये यू हैव दिस, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए यू विल टेक, so volume will be what, ट्रिपल इंटीग्रल एफ आर थीटा, तो 1 ले लेंगे, यू विल बी हैविंग रो स्क्वायर साइन फाई डी रो डी फाई डी थीटा। ओके, अब रो की लिमिट बताओ जरा, so what is the limit of rho, so what I told you, I will take the projection of this on the xy plane, what is the projection of this, any idea, projection of this, इसका अगर प्रोजेक्शन ले लूं नीचे यहाँ पर here, तो क्या आएगा प्रोजेक्शन वो इसका, सर्किल टाइप का आएगा। सर्किल टाइप का नहीं, सर्किल ही आएगा, है ना,
एक सर्कुलर आएगा Yes, प्रोजेक्शन, yes, क्योंकि प्रोजेक्शन क्या है, yes, जब इसको z को 0 कर दिए तो इट विल बी अ सर्किल, ठीक है, दिस इज अ सर्किल। तो सर्किल पे आई विल टेक नाउ फॉर रो व्हाट आई टोल्ड यू, रो मींस फ्रॉम द ओरिजिन यू विल टेक अ रे इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन। तो दिस इज योर, ये स्फीयर है, रो इज इक्वल टू 1। So what is the lower limit of rho here? This is your m. 0. 0. Good. What is upper limit? 1. 1. 1. Correct. Now phi. Now tell me what is phi. तो phi क्या बताया था मैंने? Phi is the angle from the z axis. तो ये कितना एंगल बना सकती है z axis से, मिनिमम कितना मैक्सिमम? तो how much minimum angle I can take here? How much minimum angle it can take from the positive z axis? यहाँ तक कितना मिनिमम एंगल होगा ये? 0. 0 है, सही। डाउट क्या है भाई? दिस इज द मिनिमम एंगल, क्योंकि इट इज सॉलिड कोन। तो इफ यू विल टेक द एंगल, Yes, sir. सो इट विल गो, बिकॉज दिस z एक्सिस इज इंक्लूडिंग इन द कोन, सॉलिड कोन है तो इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, तो इंक्लूड हो गया तो फाई 0। और मैक्सिमम कितना हो सकता है ये? 5/3. दिस इज मैक्सिमम π/3। तो फाई इज मैक्सिमम π/3। थीटा की बात कर, थीटा के लिए क्या बताया? थीटा इज हेयर, यू विल टेक अ रे एल। अब थीटा जो है ये एंगल है थीटा, तो हाउ मच इट कैन टेक थीटा? 2 pi. 0. हाँ, 0 लोअर 0 लिमिट से 0, 0 से 2 2। pi. 2 pi. ठीक है, बस इसे सॉल्व करना है। क्लियर? ये लिमिट्स हो गई। नाउ यू कैन सॉल्व इट इजीली, सॉल्विंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। साइन फाई पहले रो को करना है, तो यू कैन राइट थीटा इज 0 to 2 pi, फाई इज 0 to π/3, साइन फाई रो स्क्वायर कितना हो गया? रो क्यूब बाई 3, 0 to 1 d फाई d थीटा। ओके, अब 1 रखा तो 1/3, सो इट विल बी 1/3, 0 to 2 pi। साइन फाई का कर दिया यहीं पे, हाउ मच? माइनस कॉस फाई, है ना, एंड लिमिट इज 0 to, ये फाई की लिमिट है, डी थीटा। अब ये कितना हो गया? 1/3 विद माइनस साइन, माइनस भी बाहर ले लो। कॉस π/3 इज हाउ मच? कॉस वैल्यू रख दिए, कॉस π/3, कॉस 2. है, हाँ, कॉस π/3 हुआ कॉस 60, 1 बाई कॉस 60 कितना 2. हो गया? 360, 1/2, एंड माइनस कॉस 0 इज 1, है ना, कॉस 0 इज 1, कितना आ गया? माइनस हाफ, और डी थीटा और है, तो माइनस हाफ बाहर चला गया, 1/6, और थीटा कितना हो जाएगा? 2 पाई। 2 π/6 हाउ मच? π/3। 3. ठीक है, तो इट्स वॉल्यूम इज π/3, द वॉल्यूम ऑफ दिस आइसक्रीम कोन। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे आप लिमिट निकाल सकते हैं। इट इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, जो आपको अगर लग रहा हो। इस प्रॉब्लम में आपने देखा, आपने खुद ही लिमिट्स बताई मुझे, हाउ टू फाइंड द लिमिट्स। तो रो की लिमिट्स के लिए क्या करना होगा? फ्रॉम द ओरिजिन यू विल टेक अ रे, है ना, जहाँ से एंटर हुई दैट इज लोअर लिमिट, वेयर इट इज लीविंग दैट इज योर अपर लिमिट। फिर आई विल से दिस रे हाउ मच एंगल इज कवरिंग, तो मिनिमम एंगल फ्रॉम द जेड एक्सिस एंड मैक्सिमम एंगल। जेड की लिमिट मैक्सिमम क्या हो सकती है? पाई, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, फाई की लिमिट। देन थीटा, थीटा मींस प्रोजेक्शन ले लें एक्स वाई प्लेन पे, एंड सी थीटा हाउ मच कैन कवर इन द प्रोजेक्शन। ठीक है भाई, तो ये एक प्रॉब्लम थी जो आपने करा दी है। बाकी इसमें एक्सरसाइज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, सच कोई मेंशन नहीं है आपके इसमें, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं अपने आप प्रॉब्लम्स फ्रॉम एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 15.7, इसमें से आप प्रॉब्लम्स करेंगे अपने आप, वॉल्यूम वगैरह की। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स करिएगा ट्राई। नेक्स्ट, अब कल स्टार्ट करूंगा मैं आपका नेक्स्ट जो यूनिट है, यूनिट 4। यूनिट 3 आपका फिनिश हो गया। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट टुमारो यूनिट 4, लाइन इंटीग्रल। देयर वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ लाइन इंटीग्रल व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग ओवर अ लाइन। अभी तो आप इंटरवल में इंटीग्रेट करते हैं,
0 to 1 this. Now if your curve is along, your integral is along the curve, ठीक है, तो वही कल उसको सर डिस्कस इसमें करें. यस, 15.8 बचा है सब्स्टिट्यूशन इन मल्टीपल वो इंटीग्रल. नहीं है आपका, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. ओके सर. चलिए फिर कल बात होगी. ओके, थैंक यू सर. Thank you, sir.